In the last class, we studied about phase and phase difference. What is phase? Phase is like it shows you ki where the particular object is, whether it is a waveform, right? Whether it is a current, where exactly is the position of that waveform. That is the information. What is the phase difference? Suppose if you have got two like waves, whether it is an AC or it is any of the wave or waveform, कोई भी चीज अगर waveform में जा रही है, sinusoidal way में जा रही है, तो कौन किससे कितना आगे है, that is given by the phase difference. ठीक है? तो हमने ये पिछले क्लास में इसके बारे में देखा था. ठीक है? Now today we are going to study about the resistance, reactance and also the impedance, right? That is the main topic of what we are going to study. Okay, now first and the foremost thing is, what do you understand by the resistance? Current electricity वाले चैप्टर में हमने पढ़े थे, ठीक है? Something which stops the flow of the current is called as the resistance. कुछ भी चीज जो करंट के फ्लो को रोकता है, that is called as the resistance. ठीक है? आप लोगों को नोट्स में दे रही हूं, आप लोग लिखेंगे उस नोट्स को, रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस एंड इंपीडेंस. तो ये जो रेजिस्टेंस होता है ये सिर्फ ओमिक कंडक्टर्स में होता है. मतलब मेटल के कंडक्टर हुआ और उस पर करंट फ्लो हो रहा है और वो करंट को रोकता है कुछ चीज, तो इस रुकावट को हम रेजिस्टेंस कहते हैं. That रुकावट, that hindrance to the flow of the current is called as the resistance. ठीक है? तो अगर हमारे पास डीसी करंट है तो only thing जो उसको रोक रहा है that is the resistance. ठीक है? बट अगर हमने एसी ले लिया तो एसी को रोकने वाला कौन कौन है? तो एसी में हम लगा सकते हैं ओमिक रेजिस्टेंस, इंडक्टर, कैपेसिटर, कोई दो कोई तीन, कई कॉम्बिनेशंस में हम लोग इसको लगा सकते हैं. ठीक है? तो द ऑपोजिशन गिवन बाय द कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ एसी इज कॉल्ड एज द रेजिस्टेंस. अगर मैंने उठाया और कंडक्टर को ले लिया तो द ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ द करंट इन द कंडक्टर, दैट इज नोन एज द रेजिस्टेंस. ठीक है? जब द ऑपोजिशन इज गिवन बाय द इंडक्टर or the capacitor, then it is called as the reactance. ठीक है? और reactance देखो, resistance होता है और reactance होती है. तो the opposition given by the inductor or the capacitor, it is called as the reactance. किसे डोनेट करते हैं? डिनोट करते हैं X से. If the inductor is present, XL is used. And the reactance is called as the inductive reactance. It is called as the capacitive reactance. अगर हम लोगों ने capacitors use किया तो, inductor use किया तो it is XL, है ना? And the reactance is called as the inductive reactance. ठीक है? और अगर हमारे पास कैपेसिटर है, if capacitor is present, तो it is called as the capacitive reactance. सभी केसेस में क्योंकि वो हिंडरेंस है तो हिंडरेंस को हम लोग उसका यूनिट क्या हो जाएगा? ओम. वेदर वो इंडक्टिव कैपेसिटेंस हो, इंडक्टिव रेजिस्टेंस सिंपली हो या फिर कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस हो, सभी में हमारा जो यूनिट रहेगा तो यूनिट हमारा क्या रहेगा? द यूनिट इज आपके लिए सिर्फ और सिर्फ ओम होगा. ठीक है? जब हमारे पास द ऑपोजिशन इज गिवन बाय द कॉम्बिनेशंस ऑफ एनी टू, either the resistor, capacitor or inductor or all the three of the AC, then it is called as the impedance. That is called as the impedance and it is denoted by Z and its unit is ohm. आ गया? तो
सबको ये बात समझ में आ गई कि हम लोगों ने रेजिस्टर्स यूज किया तो रेजिस्टेंस कहलाएगा, कंडक्टर यूज किया तो इंडक्टर, तो या फिर कैपेसिटर्स, तो इसमें जो ऑपोजिशंस पैदा होगी दैट इज कॉल्ड एज द रिएक्टेंस। दो या दो में से कोई भी दो या फिर हम तीनों को यूज करेंगे, सो दैट विल बी कॉल्ड एज द इम्पीडेंस, राइट, जेड से डिनोट करेंगे। और सभी के लिए यूनिट किसको लेंगे? सभी के लिए यूनिट हम ओम ही लेंगे, हम कोई और नहीं लेंगे। इज दिस क्लियर? Okay, now we have got the comparisons of the resistance, reactance and the impedance, right? It is written in the columns form. The first is the resistance, then the reactance and then the impedance. The obstruction offered by the conductor to the flow of the current is called as the resistance. The obstruction which is offered by inductor or the capacitor to an AC, it is called as the reactance. The obstruction which is offered by the combination of either of the resistor, capacitor, inductor or all the three to the AC, it is called as the impedance. दो या दो से अधिक, ठीक है? Now, the reactance does not depend upon the frequency. Resistance does not depend upon the frequency, it is denoted by R. Reactance depends upon the frequency, it is denoted by X. And the impedance depends upon the frequency and it is denoted by Z. These are the three important things which I'll be talking today, right? Now, I want to apply this resistors, capacitors, etc. to a AC circuit. हमारे पास एक AC circuit है और इस AC circuits में हम इन सब चीजों को लगा रहे हैं, ठीक है? तो एक एक करके हम देखते हैं कैसे लगेगा अगर हमने इसमें एक AC सर्किट को लिया और AC सर्किट को लेकर के हम इस AC सर्किट में सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस लगाए तो I've got a circuit and in that circuit I have got a resistance. Now I am writing this circuit, drawing this circuit rather, I should have a resistance. Now the magnitude of the resistance is equal to say R. इसमें हमने उठाई और इसमें हम सप्लाई दे रहे हैं that is of an AC. AC जब रहेगा तो इसके अंदर में कोई करंट नहीं रहेगा, हम डायरेक्शन नहीं शो करेंगे, है ना? इसमें हम कोई डायरेक्शन शो नहीं करेंगे और डायरेक्शन जब हम नहीं शो करेंगे तो इसके अंदर में क्या आएगा, तो हम देखेंगे कि इसमें वोल्टेज लगा रहे हम, तो ये ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज है और ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज को हम दिखा रहे हैं कुछ इस तरीके से. Dev, are you able to listen to me? This is the voltage, this is the time, and the EMF which is applied at any instant of time, that is equal to E naught sine omega t, right? This is called as the E naught, yeah? Okay, chaliye, fine. So E is equal to E naught sine omega and t, ठीक है? Okay, so you have got, या भाई रिकॉर्ड हो गया है, मैं पिछला वाला सबका भेज देती हूँ बेटा, वो YouTube में अपलोड नहीं हो पाया, YouTube में हो जाएगा, I'll send the link, right? Okay, इसके पहले जो 3 लेक्चर्स हुए, आज का 4th लेक्चर है हमारा, तो तीनों लेक्चर्स के मैं अच्छे से बना के रख दी हूँ, तो you just have to get the YouTube links, okay? Fine, वो हमेशा रहेगा, आप कभी भी देख सकते हो. Now I have got this resistance E is equal to E naught sin omega t, ठीक है बेटा? करंट इसके अंदर में फ्लो होगा, तो करंट भी मेरा वेरिएबल ही होगा, है ना? तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द करंट? अगर सिर्फ रेजिस्टर्स लगा होगा और कुछ नहीं है, तो मुझे पता है कि द करंट हियर इट इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाय R, दैट इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा t डिवाइडेड बाय R. बच्चे लोग यहाँ ध्यान से देखिएगा, this E naught divided by R, I can write this as I naught because E naught is a constant and R, the resistance is also a constant, provided the temperature remains the same. So what does this become now? I is equal to I naught, है ना?
I naught sine omega t. The voltage in the resistor E is equal to E naught sine omega t, I is equal to I naught sine omega t. What is so special about it now? We know that I and E are in the same phase. इसका मतलब जब करंट जीरो रहेगा तो ईएमएफ भी जीरो रहेगा, करंट मैक्स में जाएगा तो ईएमएफ भी मैक्स में जाएगा, और दोनों साथ साथ चलेंगे तो सिर्फ इनके मैग्नीट्यूड्स में फर्क होगा. जैसे हमने इसमें ऐसे बनाया इसका कोऑर्डिनेट एक्सिस. In the x-axis, I'm having the time. In the y-axis, I've got the voltage, and also I have got the current. Now, if I happen to draw the diagram for the value of the voltage, I'm drawing it in blue, right? So I take the voltage to be here, max, okay? So this is going in this way, ठीक? अब ये यहाँ आया, एक दो, ठीक है. अब 1 2 और ये 3 में लिया मैंने, ठीक है. Okay, so you can see that I'm able to draw this here. This is the time and this is representing the voltage, right? Now if I want to विशेष, ये जो मैंने मैक्सिमम ये जो लाइन डाला ना बेटा, इसको मैं क्या बोलूं? विशेष, अनम्यूट योरसेल्फ एंड स्पीक आउट बेटा. यस मैम. बोलो बेटा, ये जो है ना, ये पीक वैल्यू, ये क्या है बच्चा? ये मैम मैक्सिमम वैल्यू. हाँ, ये कितना हो जाएगा? ई नॉट होगा. और ये कितना हो जाएगा? दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई नॉट, राइट? एंड दिस ई इज इक्वल टू, साइन ग्राफ बन रहा है ना, तो इट इज ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी. ठीक है. ओके, अब मुझे देयर इज लॉट ऑफ थंडरिंग गोइंग ऑन. सो यहां से इसको मैं करंट को दिखा देती हूँ बेटा. देखो, करंट जब पूरा मैक्स हो रहा है ना, वोल्टेज जब मैक्स था तो करंट भी मैक्सिमम था. मेरा कर्व थोड़ा सा पीक हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए. आप साइनसोइडल वाला बनाएंगे अच्छा सुंदर वाला, तो ये क्या रहेगा? दिस इज इक्वल टू से आई नॉट, और ये जो ग्रीन वाला ग्राफ आपका बन रहा है, दैट इज आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी. दोनों संग संग, मिनिमम, जीरो, मैक्स, नेगेटिव मैक्स एंड जीरो, सब कुछ का सेम रहेगा. सो दे आर इन द सेम phase. Now, what is the phase difference between the both? Phase difference between voltage and the current, omega t minus omega t, that is equal to 0. Right? So this is the diagram which I have got it. राइट. अच्छा, अब मैं इसको फेजर के रूप में ड्रॉ करना चाहूं, यानी जो सर्कल वाला बताया था ना आपको, तो वो सर्कल के रूप में अगर इसको मैं बनाना चाहूं, विशेष ही बताएगा मुझे. विशेष, पहले भी पढ़ा था क्या बेटा? तुम्हारे जो और एक टीचर थे, उन्होंने फिजिक्स में, मम्मी कुछ बता रही थी, एसी पढ़ा है करके, यही चैप्टर था क्या बेटा कि कुछ और था? मैम पढ़ा था, बट पेपर आ रहे थे, सर ने पूरा नहीं पढ़ाया था. ओके बेटा, अब ये बात अब समझ में आ रही है? कितनी समझ में आ रही है वो मेरे को क्विज लेना पड़ेगा तुमको, है ना? जो भी डाउट्स आएगा ना बच्चों, यू कैन ऑलवेज आस्क लाइक पर्सनल डाउट ऑल्सो. यू कैन टेक योर टाइम, दोपहर के टाइम पे, और बोल सकते हो और बैठ सकते हो. ठीक है. श्रृंखला, अंकिता, बहुत दिन हो गया बेटा अपन नहीं बैठे हैं. देव, आप बोले आएंगे करके, आप नहीं आए. हाँ मैम, मैं आ नहीं पाया, वो मम्मी को दिखाने गया था डॉक्टर के पास. अब ठीक है मम्मा? हाँ अभी ठीक है बेटा, आप लोग सबको ही बैठो और करो, राइट? सो आई एम बिट बिजी ओनली फॉर 2 more days एंड देन आई विल बी फ्री. ठीक है.
So I'll be मैम मेरा absolutely. क्लास पूरा लगा दे रहे हैं ना सुबह से, इसलिए मुश्किल हो रहा है जाना। बेटा आपको बैठना तो पड़ेगा ना बेटा, टाइम निकाल करके। You can sit any time. Leave me only from 6:30 to 8:30 in the morning, and then from 3 o'clock to 7:30 in the evening. Otherwise, it's all yours. All the timings will be yours only. Saturday onwards, so I'm absolutely free. Right? I'm not free tomorrow and Friday. थोड़ा सा काम है मुझे, but otherwise I'm totally free. And that will be till the November तक का मैं एकदम completely free हूँ. Right? So you can ask me anytime, you can talk to me and sit with the doubts, clear, get it corrected, everything can be done. Right? Okay. So this is the circle. इस केस में आप मुझे बताइए, छोटा सर्कल भी मैं ड्रॉ करती हूँ, है ना बेटा? देखो मैंने कल फेजर बताया था. हर्ष, ए हर्ष, हर्ष, हर्ष पिछला क्लास छूटा रे बेटा. हाँ तबीयत खराब था मेरा। हाँ ठीक है, अब यहाँ देख ले. मुझे पता है कि करंट, ये करंट है ना, ये वाली जो है मैंने इसको करंट से रिप्रेजेंट किया और इसको मैंने वोल्टेज को लिया. ये ई नॉट है ना, इसकी जो रेडियस है दैट इज इक्वल टू ई नॉट और इसकी रेडियस जो है दैट इज इक्वल टू आई नॉट. मैंने कहा किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर, ठीक है, करंट यहाँ 0 टाइम पर शुरू किया, समय टी के बाद वो यहाँ पहुंच गया वोल्टेज. तो करंट कहाँ पहुंच गया? यहाँ पर. तो क्या दिखा मेरे बच्चे लोग को? यहाँ दिखा कि ये देखिए, है ना, करंट और ये वोल्टेज, है ना, दोनों सेम सेम चल रहे हैं. घूम रहे हैं तो कैसे घूम रहे हैं? दोनों संग संग घूम रहे हैं. देखो ऐसे करके दोनों संग संग घूम रहे हैं, है ना. कोई लोग हैं जो एकदम लेट आते हैं. कार में आ जाते. ओके. सो यहाँ पर आपने देखा कि ये ओमेगा टी होता है. ठीक है, ये वाली जो एंगल है दैट इज इक्वल टू ओमेगा टी. अच्छा एक बात बताओ, अगर मुझको वोल्टेज और करंट के बीच में लाइंस बनानी है, देखो ये एक मिनट, देखो मेरे को यहाँ पर एक जगह मुझे वोल्टेज लेनी है रे बच्चा और दूसरा मेरे को करंट लेना है. तो करंट और वोल्टेज के बीच में एंगल कितना होगा जरा बताओ जरा. ये मेरा करंट रे और ये वाला वोल्टेज भी इधर ही है, तो करंट और वोल्टेज के बीच में 0 डिग्रीज का एंगल रहेगा. तो यहाँ मैंने वेरिएबल करंट रखा और इसको ऐसे करके ग्राफ बनाया ना करंट और वोल्टेज के बीच में, तो दोनों ऐसा ही स्ट्रेट लाइंस बनाएंगे. ये करंट है और ये मेरा वोल्टेज है, दोनों के बीच में एंगल कितना रहेगा? दैट इज इक्वल टू 0 डिग्रीज. आ गई बात समझ में? क्लियर है ना? तो ये यहाँ पर आपको करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेज में दिखाई देंगे. चलो फटाफट नोट कीजिएगा अपने अपने नोटबुक पे. डिफरेंट टाइप ऑफ द ऑल्टरनेटिंग करंट्स, और यहाँ सबसे पहला हमने यूज करनी है दैट इज द एसी करंट, जिसमें सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस है. एसी करंट पे कभी भी डायरेक्शंस नहीं लिखेंगे, है ना. मैम थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे थोड़ा नीचे। क्या? बिल्कुल. अच्छा ये आपने नोट कर लिया ये वाला पार्ट? नहीं मैम, मैंने तो स्क्रीनशॉट ले लिया था। स्क्रीनशॉट क्यों ले रहे हो? मैं भेज रही ना पीडीएफ, पीडीएफ भेज रही ना बेटा. पिछला वाला भी ना मैं वीडियो के साथ भेज रही थी इसलिए लेट हुआ. ठीक है, ओके.
please write, don't take that screenshot. वो है करंट और वोल्टेज के बीच का ग्राफ. तुमने पिछला क्लास मिस किया ना बेटा, इसलिए समझा नहीं होगा ये वाला. ऑफ कोर्स सब बनाना पड़ेगा. मैं लेक्चर भेज रही हूँ. हो गया तो बताओ अंकिता. हो गया बच्चा लोग. नाउ फिनिश्ड. थोड़ा सा बेटा थोड़ा अच्छा लिखो. क्या बोलूं मेरे बेटे को, मैं इतने साल बोलती रही तो कुछ नहीं किया, तेरे को भी क्या बोल के क्या. हो गया. Now I have got a AC circuit which is having only and only a capacitance, right? So if I have got only and only the capacitance, in that case, how will the circuit look like? So capacitance है रे बाबा, ये देख, capacitance का symbol तो ये हो गया. वैसे तो अगर डीसी करंट भेजोगे तो इसके अंदर से कोई करंट फ्लो नहीं होता है. हाँ, अब मैंने इसके अंदर से एसी करंट को भेज दिया. अब एसी करंट को भेज रही हूं तो वोल्टेज जो इसका वेरिएबल वोल्टेज है इसको मैंने ले लिया ई नॉट साइन ओमेगा टी. और इसको हम लोग कैसे दिखाएंगे? ई नॉट साइन ओमेगा टी. साइन ग्राफ रहेगा, है ना. अच्छा, एक बात बता बेटा, इसमें कैपेसिटर में इस वेरिएबल ईएमएफ की वजह से सत्यम चार्ज होगा रे बेटा. चार्जिंग डिस्चार्जिंग चार्जिंग डिस्चार्जिंग होगा. नहीं समझ रहे? अच्छा, मैं बाकी सबसे पूछ रही हूँ ना. श्रृंखला प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ रे बच्चा. श्रृंखला. या यस मैम. नहीं होगा. नहीं, मैं बता रही हूँ ना आपको, एक बार ध्यान से सुनो. मैंने यहाँ पर एक कैपेसिटर ले लिया रे बच्चा. हाँ, अब इसमें मैं एसी करंट को भेज रही हूँ. एसी वोल्टेज. हाँ, वोल्टेज इसकी कैसी जा रही है देखो, ऐसे जीरो से मैक्स जीरो, नेगेटिव मैक्स, फिर जीरो, फिर से नेगेटिव मैक्स जीरो, मैक्स जीरो, मैक्स जीरो. राइट, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन दिस वे. राइट. तो ये जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर में क्या चार्ज कांस्टेंट रहेगा या चार्ज भी मैक्स, फिर जीरो, फिर मिनिमम नेगेटिव, ये वाला फिर से नेगेटिव हो जाएगा. हाँ, और ये पॉजिटिव हो जाएगा. ऐसे कुछ होगा? ऐसा आपको लग रहा है? क्या इस पे कांस्टेंट करंट रहेगा कि वैरी होते रहेगा करंट, चार्ज? वैरी मैम वेरी होगा. वैरी होगा. कॉमन सेंस की बात है, वैरी होगा. क्यों? क्योंकि इसमें जो वोल्टेज है वो वोल्टेज वैरी हो रहा है, और वोल्टेज के साथ साथ इसमें जो दोनों प्लेट्स जो रहेंगे, मेरा प्लेट ए और जो प्लेट बी है, इसमें चार्ज भी वैरी होता रहेगा. ठीक है. क्या इसकी कैपेसिटी वैरी होगी कि कैपेसिटी कांस्टेंट है? किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कांस्टेंट होता है. राइट. सो द कैपेसिटेंस, ये जो मैंने आपको बताया, वो वोल्टेज या चार्ज के ऊपर तो बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता. वो किस बात पे डिपेंड करता है? वो सिर्फ उसके स्ट्रक्चर, उसके साइज, उसके एरिया, इस बात पे डिपेंड करता है. ये बात आपको अच्छी तरह से मालूम है ना. तो चलिए, आपको कैपेसिटेंस मालूम है रे बेटा.
ठीक है, फिक्स्ड है ना। अच्छा, चार्ज के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द चार्ज? चार्ज होता है मेरा Q, और चार्ज के लिए मेरे को पता है दैट इज द फॉर्मूला इज इक्वल टू C इंटू V। C इज द चार्ज, C is the capacitance and V that is the voltage की बात करूं तो Q is equal to CV। ठीक है, ओके। अब मैं क्या लिख सकती हूँ? मैंने तो EMF दिया ना, तो V की जगह मैं इसमें EMF दे सकती हूँ जो मैं लगा रही हूं। सो मैं क्या लिख सकती हूँ? When variable voltage is applied, then charge is also a variable। चार्ज भी अपने आप में एक वेरिएबल होता है ना। सो हमको पता है Q is equal to C into E naught sin ओमेगा टी। मेरे को अगर करंट चाहिए तो हाउ डू आई डिफाइन करंट? करंट का डेफिनेशन बोलो। करंट इज इक्वल टू dq by dt, rate of change of charge with respect to time, dq by dt। तो बेटा आप क्या बताओगे इसको? दैट इज इक्वल टू d by dt of E नॉट इंटू C इंटू साइन ओमेगा टी। क्या क्या कांस्टेंट है इसमें? dq by dt, तो इसको तो मैं लिखूंगी I, इसको तो मैं लिखूंगी I। E नॉट मेरा कांस्टेंट है, C भी कांस्टेंट है, तो d बाई डी टी किसका करूं? तो बोले साइन ओमेगा टी का। बेटा करंट मेरा अभी कितना आ गया? दैट इज E नॉट इंटू सी साइन ओमेगा टी का आता है, दैट इज द कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा? दैट इज इक्वल टू ओमेगा। क्लियर? अच्छा, तो अब ये आ गया कॉस में। अच्छा, हम क्या लिख सकते हैं? देखो E नॉट कांस्टेंट है, C कांस्टेंट है, ओमेगा भी कांस्टेंट है, तो हम एक काम करेंगे, एक मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी, ये ओमेगा इधर नहीं आता, ओमेगा आपको मल्टीप्लाइड में होगा। तो E naught C into omega, I can take this as I naught because all is constant. So what is this I? I is equal to I naught cos omega t। I naught cos omega t। ठीक है। अच्छा बेटा, अब बताओ मेरे पास जो EMF जो दिया गया है, इस EMF के लिए हमने क्या लिया? E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। तो मैंने कहा जब भी हमको फेज डिफरेंस निकालना होता है ना दो वैल्यूज के बीच में, तो सबसे पहला बात ध्यान देने वाला ये होता है कि दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए है। दोनों का जो फ्रीक्वेंसी जो होना चाहिए ना, तो दोनों में क्या सेम होना चाहिए? पहला चीज, कंपेयरिंग फेजेस, F सेम। उसके बाद जो भी वैल्यू होगी ट्रिग्नोमेट्री की, तो ट्रिग्नोमेट्रिकल जो फंक्शन होना चाहिए वो भी सेम होना चाहिए, और जो ओमेगा टी जो लेनी चाहिए इसको मुझे पॉजिटिव रखना पड़ेगा। ठीक है, इसको मैं अलग से बॉक्स में बना के रख दी। तो इन सब बातों का ध्यान रखना। एक यानी F इज इक्वल टू सेम, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन सेम, ओमेगा टी हैज टू बी पुट एज द पॉजिटिव वैल्यू, राइट। तो आप देखेंगे इस कॉस में है और यहां पर ये साइन में है। कॉस को मुझे साइन में चेंज करना है। दो तरीका है मेरे पास, तो आप मुझे बताएंगे
कि मैं कौन से तरीकों को ले लूं, इसको मैं बाद में काट दूंगी। cos ओमेगा टी को लिख सकती हूं sin पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी। cos ओमेगा टी इज ऑल्सो इक्वल टू sin ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। क्या मैं प्लस वाला पार्ट को लूं या नेगेटिव वाला पार्ट को लूं? वहां अंदर से आवाज नहीं आ रही है, बोलिए। पॉजिटिव मतलब सेकेंड वाला इसको लूं, काय के लिए लूं? बिकॉज मुझे ओमेगा टी पॉजिटिव चाहिए, है ना। ये वाली वैल्यू मैं नहीं लूंगी। तो हमने क्या लिखनी है यहां पर? अब देखिए, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस साइन 90 प्लस थीटा भी होता है, साइन 90 माइनस थीटा भी होता है। माइनस वाला नहीं लेंगे हम, यहां पर लेंगे प्लस वाला। तो अब लिखेंगे therefore phase difference between voltage and current। so voltage पहले लिखा मैंने, बाद में मैंने करंट लिखा, तो फेज डिफरेंस दैट इज इक्वल टू, बोलिए, ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। तो क्या लिखेंगे यहां पर? दैट इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2, राइट? हियर इट इज माइनस पाई बाई 2, वोल्टेज और करंट। तो कौन पीछे? इसका मतलब ये हुआ वोल्टेज लैग्स बिहाइंड द करंट by 90 degrees, or this whole thing can also be written as current leads the voltage by 90 degrees। कौन आगे? कौन आगे? करंट। कितने से आगे? तो बोले 90 डिग्री से आगे। ठीक है, आ गई बात समझ में ना? हाँ, अच्छा रे बेटा। और एक बात यहां पर तो और एक मजेदार बात हो गई थी ऊपर, यहां देखिएगा, इसने बोला कि ई नॉट सी इंटू ओमेगा दैट इज इक्वल टू आई, है ना। अच्छा, इस एक्सप्रेशन से हमको एक चीज पता चलता है। देखो, एक बात का ध्यान रखना, जो भी ईएमएफ के नीचे आएगा वो रुकावट पैदा करता है। जो भी ईएमएफ के डिनोमिनेटर में आएगा, क्या हो गया तुझे? जो भी डिनोमिनेटर के आएगा ईएमएफ के, वो रुकावट पैदा करेगा, है ना। क्योंकि मुझे पता है कि देखो ये करंट है ना हमारा, ये करंट, इसको मैं लिख सकती हूं ई नॉट। न्यूमरेटर में जो है उसे लिखा जा सकता है 1 अपॉन ओमेगा सी, कोई दिक्कत? तो करंट इज इक्वल टू ईएमएफ डिवाइडेड बाय हिंड्रेंस। ठीक है, तो यहां पर हिंड्रेंस कौन पैदा कर रहा है? 1 अपॉन ओमेगा सी। सो द कैपेसिटेटिव reactance that is equal to 1 upon omega c, that is equal to xc। reactance due to capacitance repellent, है ना। so this can be also written as xc, ओमेगा के बदले में लिखेंगे हम लोग 2 पाई न्यू। हाँ, so this would become 2 पाई न्यू इंटू सी।
2 pi is a constant, C is also a constant. So what can I write here? This shows me that this capacitive reactance is inversely proportionate to omega. Capacitive reactance is also inversely proportionate to the frequency. Now, if I happen to draw a graph between the capacitive reactance on the y-axis and the omega on the x-axis, because omega को vary करने से xc कैसे होगा? So this will be a ऐसा ग्राफ. फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जा रहे हैं तो जो रिएक्टेंस है वो कम होते चला जा रहा है, right? So same graph we will be getting if I take the frequency on the x-axis and xc on the y-axis. This is also a inversely proportional graph. Clear? Right? So I have got this as a separate चीज मैं बता रही हूं आपको. हम ले रहे हैं AC का, पहले डिफाइन किया और हमने यहाँ पर तक का क्या ले लिया बेटा? करंट को डिफाइन कर लिया. इसको ऐसा इसलिए रखा क्योंकि हमको फ्रीक्वेंसी रखना है सेम, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन सेम, ओमेगा टी को पॉजिटिव है. अब मैं यहाँ पर किसके बारे में बात कर रही हूँ? कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस. है ना? अब कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस हो गया. हमने यहाँ पर देख लिया कि वोल्टेज जो है वो करंट से पीछे है ना? तो चलिए हम इसका फेजर डायग्राम बना लेते हैं. ठीक है, तो क्या देखा हमने फेजर डायग्राम में? वोल्टेज V इज इक्वल टू ई नॉट, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, है ना? तो 1, 2 एंड 3 मैंने ले लिया था यहाँ पर, है ना? ठीक. आई क्या कर रहा था? लीड कर रहा था. कितने से लीड कर रहा था? 90 डिग्री से लीड कर रहा था. तो हमने देखा जब ये 0 है तो ये मैक्स में था और जब ये मैक्स में गया तो ये इसका मिनिमम वैल्यू हो गया. ये मेरा करंट है. जब ये 0 हो गया तो ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो गई थी. 90 डिग्री इसका ही लैग था. जब ये फिर से 0 गया, ये मैक्सिमम गया तो ये 0 हो गया और जब ये 0 हुआ तो ये वापस क्या किया? ये वापस मेरा 0 पर चला गया. दिस इज शोइंग यू द वैल्यू ऑफ व्हाट? दिस इज शोइंग यू द वैल्यू ऑफ E and the green one, it is showing you the value of the current, right? This is actually showing you the time and this is showing you the voltage as well as the current. यहाँ क्या दिख रहा है हमारा? That is current is leading by phase angle of 90 डिग्री. ठीक है. अच्छा चलो सर्कल वाला बनाते हैं हम, फेजर्स बनाते हैं हम. तो सबसे पहले हमने यहाँ पर ये जो ये फेजर बनाया तो हमने क्या बोला था? इसकी पीक वैल्यू को आपको लेनी है और इसका मुझे एक सर्कल बनाना है. ये क्या दिखा रहा है आपको? ये आपको ये वोल्टेज दिखा रहा है. ये देखो, ये इसका मैक्स है ना, इसका मैक्स के साथ आ गया तो ये मेरे को वोल्टेज दिखा रहा है जो घूम रहा है. और ये जो वाला है ना जो अंदर में जो है, दिस इज एक्चुअली शोइंग मी द वैल्यू ऑफ द करंट
ये मेरा करंट शो कर रहा है। दोनों के बीच में करंट आगे जा रहा है। कितने से आगे जा रहा है? बोले 90 डिग्री से आगे जा रहा है। जब मैं 0 से शुरू करी होंगी तो समय के बाद मेरा वोल्टेज जो है, मान लो किसी समय के बाद वो यहां पहुंच गया, ठीक है, तो ये वोल्टेज है, तो करंट इससे 90 डिग्रीज आगे चल रहा है बच्चा। तो 90 डिग्रीज आगे चल रहा है तो यहां पहुंच गया होगा वो, है ना। दोनों के बीच में फेज एंगल कितना है? 90 देखो, ये मेरा करंट को रिप्रेजेंट किया है और ये मेरा वोल्टेज को रिप्रेजेंट किया है। तो दोनों के बीच में ये वाली जो एंगल है दैट इज इक्वल टू ओमेगा टी बेटा, और इसकी एंगल कितनी है? ओमेगा टी प्लस थीटा। अब आ गया समझ में कौन आगे कैसे पीछे, राइट? ओके, अब मैं सिर्फ करंट और वोल्टेज को निकालूं, ठीक है। तो आप जानते हो, तो ये वोल्टेज और करंट को जब निकालनी होगी तो आप देखना, ये अगर वोल्टेज है और ये मेरा करंट होगा, ठीक है। दोनों के बीच में मुझे एंगल कितनी बनानी है? तो मेरे को 90 डिग्रीज का बनाना है, दैट इज E एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ I। आप ना इसको ऐसे भी ले सकते हो, जैसे मैंने कह दिया कि इधर इसको उठाओ, मैंने ऐसे बनाया जैसे इसमें बनाया है, आप ऐसे भी रिप्रेजेंट किए तो भी कोई, कैसे करेंगे इसको, तो भी इसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं आएगा। अगर आपने इसको टर्न करके सिंपल बना लिया तो भी। दिखाना क्या है? करंट को बड़ा दिखाना, करंट और वोल्टेज के बीच में करंट आगे जाता हुआ दिखाई देना चाहिए, बस यही तो है। आ गई बात समझ में?